اسٹڈی سرکل کی جو سیریز چل رہی ہے گزشتہ صاف کم و بیش 1 مہینے سے، اسی کا ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے اس بار عبدالصمد عمودی صاحب، پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز کو انوائٹ کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ عنقریب جوائن ہوں گے۔ جب تک ہم مولانا رحمۃ اللہ شریف صاحب کی افتتاحی کلمات سے پہلے میں چاہوں گا یا صرف ایک چھوٹی سی صورت کی کوئی تلاوت فرما دیجیے تاکہ پروگرام کا آغاز ہو جائے۔ حدیث سے انشاءاللہ ہم کتابوں کے ساتھ لیں گے، فی الوقت ایک چھوٹی تلاوت پہ افتتاحی کلمات اور ٹاپک تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ جس کے بھی مائکس کھلے وہ میوٹ پہ آ جائیے بھائی، ڈسٹربنس آ رہا۔ ہاں ٹھیک۔ مولانا رحمۃ اللہ شریف صاحب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کی غرض و غایت کو بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ افتتاحی کلمات رحمۃ اللہ شریف صاحب کے ہو گئے، اور یہ 6 روز کی سیریز کے اختتام پہ انشاءاللہ عبدالباسط انور صاحب، شعبہ تربیت سیکریٹری حلقہ تلنگانہ جماعت اسلامی، وہ امریکہ سے جوائن کریں گے انشاءاللہ اختتامی خطاب کے لیے۔ لیکن ابھی مولانا رحمۃ اللہ شریف صاحب کے افتتاحی کلمات ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عبدالصمد عمودی صاحب جو ہے بریلویت کے عنوان پر آج جو ہے گفتگو کریں۔ مولانا رحمۃ اللہ شریف صاحب۔ دوسرے اور حضرات اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے تاکہ کلیئرٹی رہے، لوگوں کو آواز صاف سنائی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالسین۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اسی وجہ کہ اس کا جو علم ہے تو کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور اس وجہ سے کو سجدہ کرایا، تو علم ہی کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملی۔ اور مسلمان ہونے کے لیے بھی علم کی شدید ضرورت ہے۔ بغیر علم سے مسلمان سمجھ نہیں سکتا کہ توحید رسالت کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور فقہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، نہیں سمجھ۔ علم کی ضرورت مسلمان کو بہت شدید۔ علم کے اندر کیا کیا ہے مسلمان کے جاننے کے لیے؟ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی زندگی ہے، جو سیرت تاریخ ہے، فقہ ہے، اور وہ زمانے کے حالات ہیں، اس سب کو جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب جاننے سے مسلمان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ موجودہ حالات کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم کس طرح کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے رفقا میں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، بالخاص طور سے جو حالات حاضرہ ہیں، جو ماضی کے حالات ہیں، اسلام کے اہم ترین واقعات ہیں، اسلام کے خلاف کتنی سازشیں اٹھی، کیسے کہ فتنے اور بدعات اٹھی، اس کا انسداد ہمارے اہل علم نے جس طرح علماء کرام نے کیا، ان کا علم ہونے سے مسلمان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کام کے لیے جناب منیب احمد خان صاحب نے، جن کو رفقا کے اندر علم کی کمی کا احساس شدید ہے اور وہ بڑھانے کی فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں،
कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम जब शुरू किया जा रहा है, इसके ज़रिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने हमा जैसी फ़ायदे हैं इसके अंदर, कितना मजमू है, कितने फ़ायदे हैं, कितना जो है मालूमाती है। और इसमें हिस्सा लेने वाले भी काफ़ी रफ़क़ा हैं और सब ज़िम्मेदार लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या थी, क्या है, इफ़ादियत क्या है। तो हमारा काम ये है कि हम गौर से सुनें भी और नोट भी लें साथ-साथ। नोट लें और फिर इसके बाद हम याद भी रखें और दूसरों को सुनाएँ, तो सही मायने में हम दावती काम कर सकते हैं, ये हो सकता है। इस काम की अहमियत जो है, मैं एक छोटा-सा वाक़या बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। एक पड़ोसी मुल्क से एक रिसाला आता है तर्जुमानुल कुरान, आप जानते हैं, मौलाना का है। हाल में उसमें एक वाक़या आया था। ये शायद इराक़ की बात है, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। तो एक शख्स जो है स्पेन तरफ से कहीं मग़रिब से आया, आके होटल में ठहर गया, मामूली आदमी की हैसियत से। हालाँकि वो बहुत बड़ा आलिम था, ठहर गया। तो बहुत दिन हो गए, तो मालिक के मकान ने कहा मैं इनको निकाल देता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा मत निकालो, इन्हें बहुत अहम आदमी। क्या अहम आदमी है, कुछ भी नहीं करता, दिन भर पड़े रहता है और शाम में फटे कपड़े पहन के सड़कों पर मांगने फिरता है, तो इसको रखने से मेरी तौहीन है। उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं जानते, बड़ी अहम शख्सियत है, ये स्पेन या उसकी तरफ का कोई बहुत बड़ा आलिम है। उसको मज़ीद इल्म का शौक था, उसने क्या किया, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आया। लेकिन खलीफा का इताब था उन पर, खल्क़ कुरान के मसले पर, कुरान मखलूक है कुरान, तो उनको पाबंद कर दिया था कि अब किसी को न दर्स दें न समझाएं। मुझे मिलने पर भी पाबंदी लगा दिया था। तो बेचारा आया तो कैसा मिलेंगे, क्या है। तो उसने एक प्रोग्राम बनाया, मौलाना से कहा कि आपके पास आ तो नहीं सकते, आए तो हुक्म पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं एक भिखारी की हैसियत से आपके पास आऊँगा रोज़ाना रात को, और आप मुझे खाना खिलाएँगे, जैसे फ़कीर को देते, और खाने के दौरान आप जितना है इल्म मुझे दे देना, फ़िक़्ह आदि सब सुना जाए। वो सिलसिला चला। वो बरसों तक वैसे फ़कीर बन के दिन में अच्छा रहता, रात में फटे कपड़े पहन के फ़कीर की तरह आता, उनके घर माँगता, तो बोला आओ खाना खाने आ जाओ, बोले तो आके बैठ जाता और सिलसिला शुरू होता। इस तरह चंद सालों में बहुत बड़ा आलिम बन गया वो अपने वतन का। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इल्म की प्यास क्या चीज़ है और इल्म के लिए इंसान क्या-क्या मुसीबतें झेल सकता है। तो दोस्तों, घर बैठे हमें एक इल्म मिल रहा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसको फ़ायदा दूसरों को पहुँचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है जो हमें ऐसा मौका मिला है। मैं इस प्रोग्राम को बनाने, चलाने वालों को भी के हक़ में दुआ करता हूँ और आप सबके हक़ में अल्लाह के ज़रिए से उनको फ़ायदा पहुँचाया और इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बना दे। अल्लाह राज़ी हो जाए सबसे, तहरीक इस्लामी को इस ज़रिए से बहुत फ़ायदा हो। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन व जज़ा। ये थे मौलाना रहमतुल्लाह शरीफ साहब, रुकन शुरा जमात इस्लामी तेलंगाना, और साबिक़ कई मिक़ातों तक उड़ीसा की ज़िम्मेदारी में रहे और आसाम के अमीर हल्का रहे। ये एक अरसे दराज से मौलाना की देरीना ख्वाहिश पर, बल्कि हमने इस तरह की एक सीरीज़ बहुत पहले तकरीबन 3-4 साल 5 साल पहले चलाई थी। 10 हर महीने में एक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हमने ये सोचा कि इसको हम जो है कंसाइज़ करके एक हफ्ते में लेते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे जो इस्तिफ़ादा करेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि ये वो बातें हैं जो हम में से हर एक को न सिर्फ़ वाक़िफ़ होनी है, बल्कि इसलिए वाक़िफ़ होनी है ताकि हमारे काम में और मज़ीद बेहतरी आए, और हम अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में जिन अपने भाइयों को उम्मत मुस्लिमा के पाते हैं और उनके तर्ज़ अमल को देखते हैं और मुख़्तलिफ़ मसालिक को देखते हैं, तो उनके यहाँ से हम तक मिलने वाली कुछ बातें, कुछ सवालात, उनके जवाबात भी मिलेंगे। और हमने ख़ास फ़ॉर्मेट के तहत इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है ताकि अ, हम जो है इन ए नटशेल 50 मिनट का ये लेक्चर होगा और उसके बाद 10 मिनट के सवालात होंगे। अगर किसी वजह से सवालात ज़्यादा हो जाएँ, तो फिर हम जो है उनके सवालात आप व्हाट्सएप पे डाल दें
ہم جو ہے وائس ریکارڈ کر کے ڈالیں، ہم ان کے سوالات ان کو پرسنل پہنچائیں گے یا اس پہ جواب آئے گا. ورنہ آخری سیشن جو ہوگا، جس کے بعد پہلا سیشن ہمارا بریلویت پہ ہے، سیکنڈ سیشن تبلیغ جماعت پہ ہوگا، تیسرا منکرین حدیث اور اہل قرآن پہ ہوگا، چوتھا سیشن اہل حدیث پہ ہوگا، اور پانچواں سیشن جماعت اسلامی. اس اعتبار سے ہم کو کمپیریزن کا موقع ملے گا، تقابلی مطالعے کا موقع ملے گا کہ اور دوسرے یا کام کرنے والے لوگوں کے درمیان میں یا تحریکی کارکنوں میں یا تحریک کے فکر میں کیا فرق ہے. اور اختتام میں ہم جو ہے ایک سیشن پورے کا پورا صرف سوالات کا رکھیں گے، جو آخری دن ہوگا انشاءاللہ ہفتے کے لیے. میں سمجھتا ہوں عبدالصمد صاحب آ گئے ہیں. عبدالقدیر صاحب، اس سے پہلے کہ وہ جوائن کریں، چونکہ انہوں نے ایک 5 منٹ کا وقت مانگا تھا، جب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم سے کم مولانا 10 منٹ بولیں گے، ہم چونکہ وقت سے 1-2 منٹ پہلے ہی شروع کر دیے، ہم بہت جلدی میں ہیں. قدیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں تو 1-2 لفظ. عبدالقدیر صاحب. جی السلام علیکم. نہیں، میں اصل میں ابھی ایک درس سے فارغ ہوا، تو میرے ذہن میں کوئی باتیں نہیں ہیں، میں پریپیئر نہیں ہوں کیا بولنا ہے. چلیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلیے بس انتظار کرتے ہیں 1-2 منٹ کا انشاءاللہ، جی. چونکہ وہ یاسر بھائی جب تک حدیث پڑھ لیں گے. ہاں چلیے پڑھ لیجئے ایک 2 حدیث جتنا ہو سکے، وقت ضائع ہونے کے بجائے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطرات میں پیش پیش. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخدا جب لڑائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے آگے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، اور ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ سمجھا جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا. تربیت کے لیے اظہار عیب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 آدمی کے بارے میں فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص ہمارے دین کو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی یہ 2 آدمی نہ تو دین سیکھتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اس دین کا کیا مطالبات اور کیا تقاضے ہیں. یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیے ہیں، غالباً گمان یہ ہے کہ یہ دونوں منافقوں میں سے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نصیحت و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اجتماعی معاملات کا ذمہ دار لوگ اپنے وابستگان جماعت میں سے کسی کے خلاف اظہار رائے کریں تو یہ غیبت پہ شمار نہ ہوگا، لیکن یہ راہ بہت پر خطر ہے، اس میں بہت سنبھل کر قدم رکھنا ہوگا. رفقا کار کا ساتھ صحیح تعلق. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی ساتھی کے بارے میں مجھے کچھ نہ پہنچائے، کیونکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے پاس سے اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ پاک و صاف ہو. تشریح. مطلب یہ ہے کہ بلا تحقیق کوئی کسی کے بارے میں آ کر مجھ سے کچھ نہ کہیں، اور اس لیے کہ سب میرے ساتھی ہیں، اور کسی کے بارے میں اگر کچھ مجھے بتایا جائے گا تو میرے دل پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کے خلاف کسی نہ کسی درجے میں بدگمانی قائم ہوگی. یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بلا تحقیق بات پہنچانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور یہ چیز قرآن میں بصراحت بیان کی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی اور کو. ہاں البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کو ضرور مارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف نہیں پہنچائی گئی کہ آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو.
البتہ جب کوئی شخص اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا تو خدا کی خاطر اس سے بدلہ لیتے، سزا دیتے۔ معاملات کی صفائی۔ ادا بن خالد بن حوز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دستاویز لکھی۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، ادا بن خالد بن حوز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام خریدا جس کے اندر نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی اخلاقی خرابی و خباثت ہے۔ ایک بیع ہے مسلمان کی مسلمان کے ہاتھ جس میں کسی طرح کے دھوکے بازی نہیں کی گئی ہے۔ صاحب بن ابی صاحب نے کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں شرکت میں کاروبار کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی دھوکہ بازی کی اور نہ جھگڑا کیا جیسا کہ کاروبار میں شریک لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بلایا، یہ ام سلمہ کے خادم تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں دیر لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کے آثار سے ظاہر ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے محسوس کر لیا تو وہ پردے کے قریب اٹھ کر گئی اور خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ غرض وہ خادمہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تیرے بدلے لینے کا اندیشہ مجھے نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تجھے مارتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تشریح۔ یہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے تھا کہ خادمہ آخر آواز دینے پر آئی کیوں نہیں۔ اس حالت میں اگر اسے سزا دیتے تو قیامت کے دن باز پرس کا اندیشہ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی۔ اس سے پہلے وہ حدیث آ چکی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو ظالماً ایک کوڑا مارے گا تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور اسی باب میں وہ حدیث آ چکی ہے جس میں یہ بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ حقوق العباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں نے تجھ سے ایک وعدہ لے لیا ہے، قبولیت دعا کا وعدہ جس کی تو ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا۔ میں انسان ہوں تو جس کی کسی مسلمان کو میں نے تکلیف دہ بات کہی ہو، برا بھلا کہا ہو، اس پر لعنت کی ہو، اسے کوڑے مار دیے ہوں، تو میرے فعل کو اس مظلوم کے لیے قیامت کے دن سبب رحمت و مغفرت کا اور ذریعہ قربت بنا دے۔ تشریح۔ یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اگر کسی کو بالفرض ناحق ایذا دی ہو، مار دیا ہو، یا متعین طور پر معلوم نہیں کہ اس سے جا کر معافی مانگی جائے تو اس کے حق میں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کی مظلومیت کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں یہ مرض الموت کا واقعہ سننے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، سر میں شدید تکلیف تھی۔ درد کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس حالت میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، مجھے مسجد لے چلو، لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان سے جلد چلا جانے والا ہوں، پس جس شخص کی پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، اس کو یہی مجھ سے بدلہ لے لینا چاہیے، اور جس شخص کو میں نے ناحق برا بھلا کہا ہو تو میں یہاں موجود ہوں، اس کا بدلہ لے لے، اور جس شخص کا میرے ذمے کوئی مال ہے تو مجھ سے وصول کر لے، اور میری طرف سے دشمنی کا اندیشہ نہ کرے کہ میں بعد میں اس کی کسر نہ نکالوں، اس لیے کہ یہ میری شان کے منافی ہے۔ تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جو مجھ سے اپنا حق دنیا ہی میں وصول کر لے یا خوشی خوشی معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس خوش ہو جاؤں
اے لوگو جس نے کسی کا حق دبا لیا ہو وہ صاحب حق کو لوٹا دے اور دنیا میں رسوائی کا اندیشہ نہ کرے، ورنہ پھر آخرت کی رسوائی کے لیے تیار ہے، جہاں کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے سخت شدید ہوگی۔ آگے پڑھوں بھائی؟ دو بار بات ہوئی ہے میری سمجھ صاحب سے، جوائن ہونے میں بس 1-2 منٹ کی دیری ہے، جب تک اس کا وقت کا صحیح استفادہ ہو جائے گا۔ جی، جیسے وہ جوائن ہو جائیں تو آپ مکمل کر کے رک جائیں۔ دائیانہ معاشی زندگی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبوت کے بعد سے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدا کا آٹا نہیں کھایا۔ نیز سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اس وقت سے لے کر وصال تک چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ پوچھا گیا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کو آپ لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم جو کو پیستے اور آٹے کو منہ سے پھونک مارتے تھے، کچھ بھوسی اڑ جاتی اور بقایا روٹی پکا کر کھا لیتے تھے۔ تشریح: سوال یہ ہے کہ میدا کا آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دیکھا؟ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیہوں نہیں ملتا تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ امت کو سادگی کی تعلیم دینی مقصود تھی اور عیش کوشی سے بچنا مد نظر تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ نیز یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے اٹھتے ہیں تو ان پر یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کی معیار کو گرانا پڑتا ہے، بھوک پیاس اور دوسرے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سمجھ صاحب آگے، سب آگے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اسکرین شیئر کرنا ہے تو ہوسٹ صاحب تھوڑا الاؤ کریے۔ نیئر بھائی چلیے آپ بسم اللہ شروع تو کر دیں۔ ہاں نیئر صاحب نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں مطلب فون کر لوں میں ان کو؟ ہاں کر لیجیے، چلیے وہ آئیں گے تو شیئر کر لیں گے، جب تک آپ وہ تو کر لیجیے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام، یہ پہلی سلائیڈ ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیتے ہوئے آغاز کرنا چاہ رہا تھا میں۔ ٹھیک ہے، نام پہ جب آئیں گے تو اسکرین شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فیہ، وقال تعالیٰ فی مقام آخر ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، یہ جو سیریز چل رہی ہے جس میں ہر روز کچھ نہ کچھ آپ کے علم و فکر میں اضافہ ہوتا ہے، اس اسپیشل گیدرنگ کے اس سیشن میں ایک خاص موضوع کا آغاز ہو رہا ہے جو بھی تواتر لگاتار چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے ایک 5-6 روز تو مقصد یہ ہے کہ ان سیشنز کے اندر آپ کے سامنے ان افکار کو پیش کیا جائے جو کہ اسلام میں بعد میں داخل ہوئے، جنہیں ہم ماڈرن ٹرینڈز کہہ سکتے ہیں یا افکار جدیدہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جن کے مائکس آن ہے سوائے میرے وہ اپنے مائکس میوٹ کر لے تو مہربانی ہوگی۔ تو میری گفتگو
کو میں پھر برقرار رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اسلام عرب سے نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا اور خلفائے راشدین کے دور سے ہوتے ہوئے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مختلف علاقوں کو مسلمانوں نے آکوپائی کیا، اور ان علاقوں میں وہ جا کر نہ صرف بحیثیت بلکہ وہاں پر انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی اور اپنے تہذیب میں اپنے مذہب کے اثرات بھی دکھائے۔ صفدر ہاشمی صاحب میوٹ کر لیجئے۔ ایک سیکنڈ، السلام علیکم۔ سمجھ امودی صاحب، آپ کو اگر ہوسٹ سروس چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، سلائڈ شیئر کرنے کی۔ ہاں آپ دے دیے تو مہربانی، میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں۔ میں دے رہا ہوں، ابھی دے رہا ہوں جی، دے دیا، آپ شیئر کریے۔ اچھی بات، ایک منٹ اب ابھی کرتا ہوں۔ ٹائم لے رہا ہے تھوڑا سا ہی۔ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن ٹرینڈز کی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو ہوا یہ کہ جب سے مسلمانوں نے، آواز تو سنائی دے رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی جی، اسکرین بھی نظر آ رہا ہوگا ماڈرن ٹرینڈز؟ آ رہا جی الحمدللہ۔ تو پہلا دن ہے تو تھوڑا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے، لیکن سیٹ ہو گیا تو آئندہ کے لیے آسانی رہتی انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنو عباس کے پیریڈ سے ہم دیکھتے کہ حکمرانوں کی دلچسپی مذہب کی تبلیغ اور اشاعت سے بہت زیادہ کم ہو گئی، اور خاندانی جھگڑوں، اندرونی اور بیرونی سیاست، مختلف علاقوں کے
मस्जिद को कल्चर के हिस्से के तौर पर कबूल कर लेना, ये सब आम हो गया। इस दौरान में तजदीद के जो काम थे वो बहुत सारे सूफिया के जरिए से चलते रहे। अब वो सूफिया इकराम ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और आइडियोलॉजी के लिहाज से कुछ चीज़ों को पेश किया और कुछ जो है इलाके के असरात की क्या कहना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग को भी कबूल किया, बर्दाश्त किया। तो सूफिया की तरफ से नरमी इसलिए बढ़ती गई थी कि दूसरे अक़वाम, किसी और जुबान की मानने वाले, किसी और मजहब की पैरोकार, उनके साथ में ताल्लुकात बहाल हो, उसके लिए इब्तिदान उन लोगों ने नरमी को इख्तियार किया। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो नरमी उनके उस तजदीदी कोशिश का ही हिस्सा बन गई। नतीजतन हम देखते हैं कि सूफिया के पास में इस्लाम के अंदर इतना ज़्यादा लिबरलिज्म पाया जाता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातों को जो रास्त इस्लाम के अकायद से टकराती है उसको भी जगह देते रहे। अफकार में जगह देना तो कुछ छोटी चीज़ थी, अकायद में जगह देना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसकी भी गुंजाइश लोगों ने निकाल ली थी। तो ये सूफिया के ज़रिए से चीज़ें फैलती आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते गई। वही चीज़ हिंदुस्तान तक भी पहुँची। अब हमारे इस पावर पॉइंट सीरीज में आज से शुरू होके जो इंशाल्लाह और एक 5 दिन चलेगी, उस सीरीज में जब भी हिंदुस्तान कहा जाएगा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके मायने लेना है, पुराना वाला हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का हिस्सा भी शरीक होगा। तो हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी सूफिया के जरिए से इस्लाम आया, तो उनके वो अफकार भी उनके साथ साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे जो अफकार पहले से मौजूद थे वो उसके साथ मिक्स हो गए। तो तारीख में हम देखते हैं कि एडवेंट ऑफ इस्लाम की हिस्ट्री जब हम देखना चाहें हिंदुस्तान के अंदर, तो बाबा आदम के बाद एक बहुत लंबा गैप चलता है जहां इंसानी नस्ल और इस्लाम का ताल्लुक इस सरजमीन पे किसी ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड से हम प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सैयदना उमर के ज़माने में मुस्लिम अफ़वाज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हुदूद को छूने लगी। सैयदना उस्मान के ज़माने में भी छूने लगी, सैयदना अली के ज़माने में अहनफ बिन कैस नाम का एक साहब जो है यहाँ पर सिंध नदी को पार किए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर एक बड़ा पीरियड जाता है, यहाँ तक कि बनु अब्बास के पीरियड में यहाँ पर बहुत सारे सलातीन दाखिल होते हैं। तो एडवेंट की एक हिस्ट्री तो ये है कि एडवेंट को यानी इस्लाम के यहाँ पर तारुफ को हम सलातीन और हुक्मरानों से जोड़कर देखें। दूसरा नुकता यह था कि यहाँ से तुज्जार अरब को बहुत से जाते आते थे, उनके मालो असबाब को बेचने के लिए वहां पहुंचते थे। तो इन तिजारत पेशा लोगों ने अपने माल के साथ यहाँ पे इस्लाम भी लाया। तो खास तौर पे मालाबार पोस्ट में उतरने वाले पास तुज्जार जो थे वो बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक दो के नाम तो आपने भी सुने होंगे। जैसे एक मशहूर व्यापारी था जिसका नाम था यूसुफ अस्सकी। ये इसलिए मशहूर था कि इसने हिंदुस्तान के अंदर आकर अपनी तिजारत में यहाँ की गरीब आवाम में अपने सारे लिबास तकसीम कर दिए थे ताकि कोई औरत नंगी ना रहे, क्योंकि उस जमाने में सिवाय आला जात के किसी दूसरे जो है जात की औरतों को मुकम्मल लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती थी। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही यूसुफ सकी से हटकर दूसरे तुज्जार यहाँ पर आते रहे और फिर उसके अलावा बास कार्टोग्राफर हिस्टोग्राफर्स भी आते रहे। जैसे इब्ने बतूता ने यहाँ पर चंद साल क़याम किया, वैसे के खाजी के उसने यहाँ पर हुक्मरान की तायद की, और ऐसे ही इब्ने बैतार का भी जो है यहाँ से गुजर हुआ, उसकी भी तफसीलात तारीख में मिलती है। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम का एक दूसरा जरिया, इस्लाम का तारुफ इस मुल्क में जो आया था उसमें तुज्जार थे, ताजिरीन थे, तिजारत पेशा लोग थे जो यहाँ पर अपने माल और असबाब के साथ इस्लामी तहजीब के नुमाइंदा बनकर अपनी खिदमत अंजाम दिए। तीसरा एक बड़ा जरिया था इस्लाम को यहाँ पेश करने का, सूफिया। इन सूफिया ने हिंदुस्तान की सरजमीन को मुख्तलिफ वजूहात और असबाब की बिना पर इख्तियार किया। कुछ लोगों को ख्वाब में बताया गया, कुछ लोगों ने इरादे के साथ में नियत करके इस मुल्क पे जो है क़याम किया। तो चंद बड़े जो इब्तिदाई सूफिया थे, आमतौर पे तारीख में उनके नाम नहीं आ रहे, थोड़ा ताजुब होता देखकर, लेकिन वो आना चाहिए। जैसे हम देखें तो शाह हमदान है कश्मीर में, वो बहुत इब्तिदाई ज़माने में आ गए थे। 300 हिजरी अभी नहीं हुई थी कि वहाँ पर सूफिया का गुजर होना शुरू हो गया था। तो कश्मीर के इलाके में शाह हमदान जो है आकर सेटल्ड हो गए, वहाँ का बादशाह उनसे मुतासिर हुआ, रियाया मुतासिर हुई। उनकी कोशिशों से वहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लाम की इशाअत और तबलीग का इतना काम हुआ कि इंडिया में अगर आज हम देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में पाई जाती है परसेंटेज के हिसाब से। तो इतनी बड़ी तब्दीली रियाया की कैसे हुई? तो जाहिर बात है कि वहाँ पर शाह हमदान और उनके बाद उनके पैरोकारों ने इस्लाम की तबलीग में हिस्सा लिया।
ऐसे ही अगर हम देखें तो दूसरा एक बहुत बड़ा नाम होगा शाह जलाल का। शाह जलाल एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे जो कि ढाका में उतरे थे, बांग्लादेश में आए थे। बांग्लादेश उस वक्त तो नहीं बना था, हिंदुस्तान के बंगाल की खाड़ी कहलाता था। तो बंगाल की खाड़ी में वो आकर रहते हैं। चंद सालों में उनकी कोशिश का नतीजा ये निकलता है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर इस्लाम की तबलीग शुरू होती है। फिर उनके ही फॉलोवर्स के जरिए से वो काम इतना बढ़ता है कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में उन्होंने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का पहला इकदाम ये किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा। मुस्लिम मेजॉरिटी पैकेट को उन्होंने ईस्ट बंगाल दे दिया और मिक्स पॉपुलेशन जो बाकी रह गई थी उसे वेस्ट बंगाल करार दिया। तो हिंदुस्तान जब अलग मुल्क बन गया तो हम देखते हैं कि वो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से मर्ज हुआ, बाद में फिर 71-2 की लड़ाई में वो अलग एक मुल्क बन गया। तो शाह जलाल और उनके फॉलोअर्स की इशाअत का नतीजा था, तबलीग का नतीजा था कि वहाँ इस्लाम के मानने वालों का गलबा हो गया। फिर हम देखते हैं ऐसे ही कि हमारे तेलंगाना से करीब तरीन जो तारुफ मिल सकता है डोंट ऑफ इस्लाम का, 2 उसकी जो है बातें हो सकती है। एक तो सलातीन के दौर से अगर आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मलिक शाह काफूर उसका एक सिपह सालार था। उसने सल्तनत की हुदूद को तोसी देने के लिए हिंदुस्तान के साउथ को, जुनूब को मुंतखब किया। वो नीचे उतर कर आया और फतह करता हुआ बहुत आगे तक निकल गया और समंदर के किनारे मदुरई तक वो पहुंचा। तो उसका गुजर दक्कन की सरजमीन से होकर होता है। हम देखते हैं कि आज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं खाली तारुफ के तौर पे अर्ज करता हूँ, बसवा कल्याण एक छोटा सा बिदर में मुकाम है। बसवा कल्याण में अगर आप जाएंगे तो जमात इस्लामी का दफ्तर, ईसाइयों का दफ्तर जिस मस्जिद में है वो मलिक शाह काफूर की बुनियाद डाली हुई मस्जिद, वहाँ पे खिला भी पाया जाता है। तो ये मलिक शाह काफूर सलातीन में से एक मिसाल हुई। दूसरी मिसाल वैजाक पे पहुंचते हैं। उस जमाने में उसका नाम वैजाक तो था नहीं, ये इसाक मदनी ही उतरे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसाक मदनी क्योंकि उस किनारे पे उतरे थे और फिर उन्होंने वहाँ पे बस्ती बसाई थी इब्तदान मछेरों की, तो फिर वो बस्ती ही आगे जाकर इसाखापट्टनम बनी, जो कि लिंग्विस्टिक तब्दीलियों की वजह से विशाखापट्टनम में बदल गई। अलगर्ज इस जमीन पर इस्लाम का तारुफ इस तरीके से भी पहुंचा। फिर हम देखते हैं कि 4 हुक्मरानों की हुकूमत जब यहाँ कायम हुई दक्कन में, तो यानी 4 के 4 शिया हुक्मरान थे, वो आदिल शाह, निजाम शाह, बरीद शाह, कुतुब शाह। फिर लंबी तारीख है, अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो ये तारुफ में इसलिए पेश कर रहा था कि इन सूफिया की आमद के साथ इस्लाम के कुछ ऐसे अफकार इस मुल्क में इंट्रोड्यूस हुए जिसका कुरान और सुन्नत से रास्त ताल्लुक नहीं था। इन अफकार को सूफिया ने जानते बूझते सोच समझ के अडॉप्ट किया ताकि यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती मोहब्बत के ताल्लुकात कायम हो सके। उसके नतीजे में सूफिया की वो तालीमात रफ्ता रफ्ता खुद इस्लाम की तालीमात का हिस्सा बन गई। जो हमारी असास थी कुरान और हदीस, उसके अंदर सरप्लस सोर्सेस के तौर पर सूफिया की तालीमात को भी जगह मिलती है। तो हम देखते हैं कि सूफिया उन चीज़ों को यहाँ पे राइज करने में कामयाब हुए और उनके जानशीन के तौर पर अकाबिर उलमा ने भी उन चीज़ों को जगह बरकरार देते रहे। इसी का नतीजे में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के ज़माने में जब तुर्क हुकूमत यहाँ पे कायम हुई तो सलातीन तुर्क ने भी सूफिया की उन तालीमात को बरकरार रहने दिया, मुगलों ने भी उन तालीमात को बरकरार रहने दिया, बल्कि उसका जायज़ नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कहा कि सूफिया जो काम कर रहे हैं करने दो, सियासत में उनकी दखल अंदाजी नहीं, उससे हमारा फायदा होता। इसमें तब्दीलियां उस वक्त आनी शुरू हुई जब कुछ सूफिया का, कुछ उलमा का टकराव हुक्मरानों से होने लगा। तो हम देखते हैं कि अकबर के दीन इलाही के पेश करने पर उलमा बहुत नाराज हुए, सूफिया भी हुए। कुछ ने पहल की लेकिन चली नहीं। जहांगीर का दौर आ गया, एक जहांगीर आया तो उसने भी अपनी बाप की लिबरल पॉलिसी को बरकरार रखा। दिल्ली सल्तनत के जमाने की पॉलिसी इतनी लिबरल नहीं होती थी जितनी लिबरल क्या कहते हैं मुगलों के जमाने में हो गई। हम देखते हैं कि जहांगीर के पीरियड पे एक बुजुर्ग हैं जो जहांगीर के दरबार की इस्लाह करते हैं, उनका नाम मुजद्दिद अल-फसानी पर आता है। मुजद्दिद अल-फसानी के अफकार बहुत सारे बहुत अच्छे थे इस्लाम की तजदीद में, और बाज ऐसे भी हिस्से थे जिनकी इस्लाह जरूरी थी मगर वो वक्त के साथ में बात नहीं आती। लिबरलिज्म के चलते उन चीजों को बाजू रख दिया जाता। फिर हम देखते हैं कि औरंगजेब का जमाना जब आता है तो औरंगजेब ने इस चीज को रियलाइज किया कि उसके बाप दादा की ये लिबरल पॉलिसी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नुकसानदेह है।
यहाँ की मिक्स पॉपुलेशन में इस किस्म की पॉलिसीज पे अमल करने से गोया इस्लाम की तरवीज तो दूर, इस्लाम के मशवरे से इस चीज को कबूल किया कि हिंदुस्तान का पास लिहाज करते हुए कुछ चीजों की तदवीन की जाए, कंपाइलेशन किया जाए। जैसे इमाम अबू हनीफा ने अब्बासी हुक्मरानों के जमाने में फिक्ह की तदवीन की थी, और फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि ज़िंगियों और अयूबियों के जमाने में मिस्र में भी तदवीन हुई थी। तो आलमगीर ने एक पैनल बनाया जिसपे मौलवी रहीमुद्दीन साहब को जिम्मेदारी दी। तो मौलवी रहीमुद्दीन साहब ने उस पैनल की सदारत कबूल करते हुए लोगों के सामने इस चीज को पेश करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं, स्लाइड आ गई है, ओरिजिन यानी असल। तो बरेलवी मकतब फिक्र की जो असल है, अगर हम उससे ढूंढना चाहे तो तारीख में पहले स्टेप के तौर पर सारे बरेलवी उलमा जो पहला नाम पेश करेंगे वो मौलवी रहीमुद्दीन दहलवी का ही पेश करेंगे। मौलवी रहीमुद्दीन दहलवी एक आलिम दीन थे और तसव्वुफ पे अमल पैरा थे। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के करीब रहा करते थे, महर वली का उनका इलाका था, और वो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में भी हाजिर होते थे। औरंगजेब आलमगीर की तख्त नशीनी तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन उसकी हुकूमत लंबा अरसे तक दिल्ली से चल नहीं सकी। वो मराठों को कंट्रोल करने के लिए नीचे उतर कर आ गया, औरंगाबाद बसाकर औरंगजेब का क़याम औरंगाबाद में ही हो गया। नुमाइंदे के तौर पर कुछ वज़रा वहां हुआ करते थे। तो मौलवी रहीमुद्दीन बहुत ज्यादा भरोसे के काबिल औरंगजेब आलमगीर के एक आलिम दीन थे। औरंगजेब आलमगीर ने मौलवी रहीमुद्दीन को यह जिम्मेदारी दी कि वो कमेटी के साथ में बैठकर फतवा को कंपाइल करे, ताकि हिंदुस्तान के सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए लोगों के मसाइल का हल सामने आ जाए। तो वहां पर उलमा ने मेजॉरिटी को देखते हुए हनफी उसूल फिक़्ह की बुनियाद पर मसाइल का हल कंपाइल किया, जिसका नाम है फतवाए आलमगीरिया। कुछ लोग इसे फतवाए हिंदिया भी कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में कंपाइल। तो मौलवी रहीमुद्दीन, उनके बेटे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, बाप जिसे थे, बेटे उनसे भी एक कदम आगे निकले। इस्लाम की अहिया और तजदीद के रोल अगर हम पेश करना चाहे तो हिंदुस्तान के कोई भी प्रेजेंटर वलीउल्लाह का नाम छोड़कर बात पूरी नहीं कर सकते। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने इस्लाम की तजदीद और इशाअत की जिस तरीके से कोशिश की, वाक़तन वो लोगों के लिए मिसाल है। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए तर्जुमे को इख्तियार किया, कुरान का, हदीस का तर्जुमा किया। हदीस के अलावा तारीख में जो बातें मस्जुदा थी, वो खास तौर पे 4 खुलफा को लेकर उसके ताल्लुक से उन्होंने किताबें लिखी। हदीस के नासिब तराजीम बल्कि शुरुआत लिखी। अपने घर के बच्चों को भी इस मैदान में लगा दिया। सियासी तौर पे जो उथल पुथल थी उसको देखते हुए अपनी लिख के तो अहमद शाह अब्दाली को खत लिख दिया कि मुगलों के अंदर कुव्वत है कि इस्लाम के वो जोर को बरकरार रख सके, जरा आप आके गए तो अच्छा रहता। वो आके जाने से जो कुछ हुआ तारीख में, वो सियासी तारीख में दर्ज है। अहमदाबाद उसकी एक यादगार के तौर पे आज एक शहर गुजरात में बसा हुआ है। यही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, फिर इन्हीं घराने में अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी भी गुजरते हैं। इन लोगों ने साबिका सूफिया की बास तालीमात की तजदीद की, रेक्टिफिकेशन, इस्लाह भी की, और बास तालीमात को ऐसे ही रहने दिया। खुद वलीउल्लाह ने इस चीज को रियलाइज किया कि सिर्फ तालीम के जरिए से हिंदुस्तानी मुसलमानों का दिल जीतना मुश्किल है। नतीजतन सूफिया के सिलसिले को बरकरार रखना जरूरी समझा। सिलसिले फारूकिया या सिलसिले वली इलाही को उन्होंने जारी रखा, और अपने बाप के बाद वो सिलसिले के सजादा जानशीन हुए। आज तक वो सिलसिला चलता है, लोग बैठ करके पीरी मुरीदी में सिलसिले से जुड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं के कामों के जानशीन के तौर पर इसी सिलसिले से एक आलिम दीन उठते हैं, फजल हक कादी। खैराबाद एक इलाका है यूपी दिल्ली के बीच में, लखनऊ और दिल्ली के बीच में। खैराबाद में ये फजल हक साहब रहते थे। इन्होंने लोगों के दरमियान में इस्लाम को पेश करना शुरू किया, वो पुराना वाला जो सूफिया का स्टाइल था उस अंदाज में। कुछ फैक्टर्स वलीउल्लाह के ले लिए और बाकिया चीजें सूफियों की बरकरार रखी। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल खैराबादी, क्योंकि ये टीचर है अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के। तो ये हुई इनकी असल। अगर आप किसी से भी जाकर पूछे, साहब यहाँ पर हिंदुस्तान में बरेलवी मकतब फिक्र का आगाज की कुछ बारे में बताओ, तो वो बोलेंगे मौलवी रहीमुद्दीन के जमाने से ये सिलसिला चलते आ रहा। प्रूफ डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली होता है। पर आज अगर हम देखते हैं, आज कैफी जमाना
एक 20 करोड़ की आबादी इस मसलक की पैरो है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, मुख्तलिफ ममालिक में जो फिल वक्त पैरोकार है बरेलवी मकतब फिक्र के, उनकी आबादी इतनी ज्यादा है। फिर देखिए पहचान क्या है, तो सूफिया का बहुत गहरा असर हमें नजर आता है इस सिलसिले के लोगों पे। तो सूफिया का जो गहरा असर है, उसका जो क्या कहना चाहिए कि अफकारे बरेलविया में जो हिस्सा है, अगर हम उसको प्रोपोर्शनेट फ्रैक्शन में डिवाइड करके बताए तो मोटे हिसाब से 60% है। 100 में से 60 बातें ऐसी है जो सूफिया से ली गई है, 40 बातें ऐसी है जो कुरान हदीस से ली गई। आज के बरेलवी मकतब फिक्र में आगाज में ऐसा नहीं था, आगाज में बड़ा फ्रैक्शन कुरान हदीस का होता था, लेकिन रफ्ता 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 की गई। अब थोड़ा और आगे बरेलवी मकतब फिक्र की वो खिदमात जो हिंदुस्तान के लिए कुछ ज्यादा जो है कारामद रही, वो आपके सामने रखता हूँ। सर्विसेज की स्लाइड आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा कारनामा हम देख सकते हैं बरेलवियों की जो है नाम अमाल में अच्छा कारनामा, वो एक ये है कि शुद्धि तहरीक जब उरूज पे थी आर्य समाजियों की तरफ से और दयानंद सरस्वती की तरफ से, तो उसके खिलाफ में इस्लाही तहरीक का आगाज बरेलवी मकतब फिक्र ने किया। तो नईमुद्दीन यार खान साहब और फिर अहमद रजा खान के बेटे हैं रजा कादरी साहब, मुस्तफ़ा रजा कादरी साहब, इन लोगों ने मिलकर यूपी के मुख्तलिफ अजला और देहातों में 4 लाख लोगों को शुद्धि तहरीक से बचाया। और ये ऐसा ही रैंडम नहीं है, तहकीक शुदा बात है कि वाकईतन उन लोगों ने कोशिश की। इससे हटकर अगर देखें तो हिंदुस्तान के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर, जिनमें लाहौर भी है, जिनमें हिंदुस्तान के अंदर जो आता है, उस वक्त का पाकिस्तान में चला गया ना लाहौर, अब प्रेजेंट पे अगर आप देखें तो यहाँ अमृतसर है और फिर जो है दिल्ली है और फिर बदायून है, खुद इनका अपना मुकाम राय बरेली है और लखनऊ है। इन मुकामात पर बरेलवी उलमा ने बाज़ाब्ता जगह जगह पर डिबेट करके, मुज़ाकरे करके शुद्धि तहरीक के आर्य समाजियों के डिबेटर्स को हराया, जिसके नतीजे में वो लोग उन मुकामात से अपने मूवमेंट को वाइंड अप करने पर मजबूर हो गए और फिर बंगाल को उन्होंने अपना सेंटर बनाया और वहां से अपना काम जारी रखा। फिर दूसरा बड़ा काम ये था बरेलवी मकतब फिक्र का कि एक मस्जिद थी लाहौर में, एक बहुत मशहूर जो है बाग है, बाजार है, और उस बाजार के अंदर नौलखा बाजार सिखों ने मस्जिद के आंगन गुरुद्वारा तामीर कर दिया और मस्जिद को दे दिया। उसका प्रीस्ट जो है मस्जिद बनाकर रहता, भी मामला हल नहीं हुआ, ब्रिटिश कोर्ट में गई बात, ब्रिटिश कोर्ट ने जो है उसके ऊपर एज इट इज स्टेटस दे दिया, जैसा है वैसा रहने तो चेंज मत करो। तक के सिखों ने कहा कि हम मस्जिद गिराकर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाएंगे। 40,000 लोग जो है उसके खिलाफ वहां पर जमा हो गए, गोलाबारी हुई, 12 लोग शहीद हुए, लेकिन मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद की जगह पे बड़ी इमारत दूसरी तामीर कर दी गई। तो ये जो मस्जिद गंज शहीद हुई, इसके खिलाफ में एक मूवमेंट बरेलवियों की तरफ से चला, जोर शोर से उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। एक साहब थे, उनका नाम था जमात अली शाह, तो लाहौर की शाही मस्जिद से उन्होंने मार्च पास्ट किया और ये मस्जिद के मुकाम तक, मस्जिद गंज तक जो है वो आए लोगों को लेकर, कारवान लेकर। पार्टीशन से पहले तक तो ये बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी वाला मामला रहा, बाद पार्टीशन वो लोग उसे हासिल करने में कामयाब हो गए, वहां पर कोई और मस्जिद तामीर हुई। एक और बड़ा कारनामा ये था कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस मुसलमानों पे बहुत, बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा का एहसास था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को इस तरीके से सियासी इख्तिदार से दूर कर रही है। ब्रिटिश इंडिया से पहले मुसलमान यहाँ पे हुक्मरान थे और ब्रिटिशर्स के जाने का वादा है, तो इनके जाने के बाद फिर वो हुकूमत वापिस मुसलमानों को मिलनी चाहिए, उसूलन देखा जाए तो। अब वो नहीं मिल सकती तो फिर किसे मिलेगी? तो उस मौके पर कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है वारिस के तौर पर अपने आप को पेश कर रही थी, और जो मुसलमान नाम निहाद उस वक्त जमींदार जागीरदार नवाबान थे, वो
कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ले रहे थे। ऐसे मौके पर बाज बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा ने मुसलमानों के अंदर वो सियासी एहसास बेदार करने के लिए कोशिशें शुरू की, जिनमें अमजद अली आजमी साहब आजमगढ़ के एक मशहूर बरेलवी आलिम थे। उन्होंने अपने इलाके के मुख्तलिफ जमींदारों और रऊसा को इसके लिए जो है कन्वेंस किया। ऐसे ही अब्दुल हमीद बदायूनी एक साहब थे, ये भी जो है एक सूफी सिलसिले के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ लोगों का मदद किया। अब्दुल गफूर हजारवी है, ये पार्टीशन उधर चले गए, एक बड़ा मूवमेंट उनका है। उन्होंने भी बहुत सारे नवाबान को जो कि बॉर्डर के करीब रहते थे कन्विंस करने की कोशिश की। सैयद फैजुल हसन शाह साहब, ये बहुत बड़े एक पीर है, कलियर एक दरगाह है मशहूर बरेलवी में, यूपी में। कलियर के जो है वो सज्जादों के ताल्लुक रखते हैं। उनकी कोशिशें थी कि बहुत सारे जमींदार जागीरदार कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं हुए, अपना मूवमेंट उन्होंने रोक के रखा। बाद में जब मुस्लिम लीग स्ट्रांग हुई तो बहुत सारे जमींदार तो मुस्लिम लीग के अंदर गए, मुस्लिम लीग को हाईजैक कर लिया। आगे जो हुआ वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो तूफान था कांग्रेस वाला, जो कि एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाना चाहती थी अनडिक्लेयर्ड, वो जो है तूफान रुक गया। अब आते हैं मजहबी तौर पर जो तारीख है, हिस्ट्री, बहुत गौर से इन चीजों को अब आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए कि चीजें अगर गौर से सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो हुआ ये था कि हिंदुस्तान में जो हालात के लिहाज से चीजों को पेश करते थे, हिंदुओं में भी फिर अलग अलग वर्ण सिस्टम, और फिर सिख, और इन दो से हटकर अब एक जो है तीसरा मामला आ रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर एंग्लो इंडियन नाम की एक कम्युनिटी भी पैदा हो गई थी। तो इन लोगों के दरमियान में रहते हुए इस्लाम की नुमाइंदगी कैसे हो, इसके लिए उलमा के अपने अपने फार्मूले थे, और इन फार्मूलों में अल्टरेशंस आते थे उस वक्त जब उलमा का कोई ग्रुप हिंदुस्तान से बाहर से कुछ वो लेकर आएगा बाय डिफॉल्ट, और फिर लाकर यहाँ पे उसको लागू करने की कोशिश करेगा, तो इसके नतीजे में तब्दीलियां आएंगी। तब हुआ ये कि एक साहब थे सैयद अहमद साहब। सैयद अहमद साहब हज को गए, वहां जाने पर उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के, तो उन्होंने वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अफकार से आने वाली तब्दीलियों को देखा, अरब कबाइल का उससे मुतासिर होना देखा। वापिस आने तो वहाबिज्म के खिलाफ में मौलवी नकी अली, ये अहमद रजा खान के टीचर है, उस्ताद है, मौलवी नकी अली ने मूवमेंट शुरू किया। कहा कि ये जो सैयद अहमद बरेलवी साहब नए आइडिया अरब से लेकर आए हैं, ये शिद्दत पर मबनी है, इसमें अकाबिर बुजुर्गान की तौहीन हो रही है, औलिया अल्लाह का रुतबा घट रहा है, नबियों के ताल्लुक से लोगों के अंदर एक किस्म की क्या कहना चाहिए रफनेस आ गई है तकरीम के बजाय, और मुकामात मुकद्दसा के तौर पर दरगाहों को लोग काबिल कबूल नहीं समझ रहे, मसाइल मामला मुख्तलिफ हो गया है, लिहाजा कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया, मुखालिफत शुरू हो गई। तो मौलवी नकी अली के फॉलोवर्स जितने जगहों पे फैले हुए थे, वहां हम देखते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी साहब की मुखालिफत हुई। ये सैयद अहमद बरेलवी अलग है, अहमद रजा साहब अलग है। सैयद अहमद बरेलवी ने इस सियासी झगड़े के अंदर हिस्सा लिया जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ उनको जो है जिहाद करना है। मजहबी झगड़े को उन्होंने ऐसे ही बाजू रख दिया कि कोई बड़ी चीज नहीं है, हम इस पे आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो नकी अली साहब ने जो फतावे इनके खिलाफ लिखे उसका एक्सटेंशन हुआ, और सैयद अहमद बरेलवी के नतीजतन सैयद अली साहब को जो सपोर्ट मिल सकता था अहमद साहब को, बरेलवी साहब को, वो सपोर्ट आधा हो गया। तो ये इलाकों को छोड़कर वो जो है पठानों की तरफ चले गए। मुख्तलिफ पठान कबाइल जो थे उन्होंने उनकी बात को कबूल किया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ में वो लोग जिहाद किए, जिहाद तो खैर फेल हो गया। सैयद अहमद साहब जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो शहीद बालाकोट के नाम से तारीख आपको मिलती है। तो ये जो तस्वुरात वहां से वो मोहम्मद अब्दुल वहाब के कुछ लेकर आए थे, उसके खिलाफ में पहला कन्फ्रंटेशन था जो कि नकी अली साहब ने पेश किया राय बरेली से, और यहीं से आगाज होता है एक सेपरेट स्कूल का जो कि अपने से हटकर किसी दूसरे के व्यूज को कबूल करने तैयार नहीं। अब इसी नहज पे चलते हुए मौलवी नकी अली के शागिर्द रशीद राइट हैंड, उनके
लेगेसी के सक्सेसर सामने आते हैं, अहमद रजा खान फाजिल बरेली। तो अहमद रजा खान के वालिद साहब राय बरेली के बहुत बड़े जमींदार थे, जमींदारी मिली और लोगों को बहुत तो साथ साथ मरते मरते ताकीदन चीजें पेश करके चले गए थे, देखो मैं जो लिख दिया जो। तो अहमद रजा खान साहब ने वहां पर एडिटर की ऐनक अपने आंखों पे लगा ली। अब इन 6 दिनों में जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही होगा कि बिल्कुल आवाज चलेगी, वीडियो भी चलेगा। हाँ फजल भाई बिल्कुल। थोड़ा डिस्टरबेंस शुरू हुआ था, एकदम ये होगा। जी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ, नेटवर्क का अभी प्रॉब्लम हुआ। इंशाल्लाह कनेक्ट। थोड़ी देर पहले से ही आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ हाँ। आगे अस्सलाम वालेकुम। तो टाइम तो हो गया ना मुनीब भाई, क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको? नहीं, असल में हमको जो है हर रोज एक टॉपिक लेना है। आप चूंकि हमारे पास 10:15 तक टाइम है, हो सकता है आज पहला दिन होने से काफ़ी हम कनेक्ट होने में और हम जो है थोड़ा सा वो रहे। लिहाजा आप जितना हो सकता है इस टॉपिक को आज ही कवर कर लें। हो सकता है हम सवालात को अवॉइड करेंगे और सवालात वर्बल या उस पे व्हाट्सएप पे ले लेंगे। आप कंटिन्यू ठीक कीजिए टॉपिक। ठीक है, कुछ हिस्सा तो मैं कवर करता हूँ इसमें जैसा आप मेरे को बताए। अलबत्ता कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हम इसको कंटिन्यू करके फिर कंटिन्यूएशन में ही आगे देवबंदी स्कूल को ले लेंगे। तो एक दिन में एक स्कूल के बजाय 5 दिन की सीरीज में पूरी चीजें आ जाती हैं इंशाल्लाह। ठीक। तो मैं अर्ज कर रहा था आप लोगों के सामने कि असल बरेलवी मकतबी फिक्र का जो आगाज हो रहा था वो फजल खैराबादी के जमाने से शुरू होता है, जहाँ पर वो सिखों और हिंदुओं की तरफ से आने वाले तस्वुराती मुखालिफत शुरू किए थे। और उसके आगे के जो है इम्पैक्ट के तौर पर हम देखते हैं कि उसी कन्फेडरेशन की रिवायत को बरकरार रखते हुए हम आगे नकी अली साहब को देखें, फिर अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को भी देखते हैं। तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी साहब का जमाना आने आने तक हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश एम्पायर भी कमजोर पड़ गया था, वापिस आने वाला था। पैदाइश को देखें तो बात समझ नहीं आती। 1856 को अहमद रजा खान की पैदाइश होती है, 57 में सिपाही मिलिट्री होती है, फर्स्ट फ्रीडम फाइट। उसके बाद में लंबे अरसे तक जो है मुसलमानों की उथल पुथल हुई है, कोई उनकी लीडरशिप नहीं है, ना मजहबी है ना सियासी है। ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि बरेलवी मकतब फिक्र अपने सारी कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल करता है मुस्लिम अफकार के तहफ़्फ़ुज़ में। उनकी नज़र में जो अफकार मुस्लिम थे उस ज़माने में, उसके तहफ़्फ़ुज़ में वो अपनी कुव्वत ताकत को इस्तेमाल करते रहे। अब वो जो अफकार थे मुस्लिम, जिसको वो लोग यूज़ कर रहे थे,
इसको देख सकते हैं आप, ये स्लाइड के वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। तो मौलवी नकी अली साहब सैयद अहमद बरेली की मुखालिफत किए, उसके बाद में इसी सिलसिले में बाद में शाह इस्माइल साहब भी दाखिल हुए। शाह इस्माइल भी बाहर गए, अरब के तसव्वुरात को लेकर हिंदुस्तान आए। यहाँ आने के बाद में उन्होंने सूफिया की तालीमात की बहुत जम के मुखालिफत और बाद ऐसे अकायद जो कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों में दाखिल हो गए थे, यहाँ की तहजीब और कल्चर का इम्पैक्ट लेते हुए उसकी भी वो लोग मुखालिफत करते रहे। फिर हम देखते हैं कि सैयद अहमद की तरह शाह इस्माइल बरेलवी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। ये भी उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये दोनों शहीद हैं क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद किया था और इस्लामी हुकूमत के अहिया के लिए कोशिश की थी। ये और बात है कि इनकी मंसूबाबंदी वैसी नहीं थी, इनके पास अफवाज हथियार की वैसी कुव्वत नहीं थी, ना ही इनको उम्मत की बैकिंग हासिल हुई कि वो कामयाब हो जाए। तो नतीजतन जाहिर बात है कि भाई जब छोटी तादाद में लोग जाएंगे, अपने ही घर के भेदी साथ में लगे रहेंगे, तो दुश्मन गालिब हो जाएगा। अलबत्ता जो मजहबी तसव्वुरात थे शिद्दत पसंदी के, उनके खिलाफ में मामला जो है बिगड़ते रहे। इत्तेहाद उम्मत का कभी भी इसके ऊपर कायम नहीं हो सका। फिर हम देखते हैं कि अहमद शहीद और इस्माइल शहीद के फॉलोवर्स में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनका ताल्लुक बजाय बरेली के दूसरे मुकामात से था। खास तौर पे वो मुकाम था देवबंद। अब यहाँ एक नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूँ। उर्दू जुबान के 3 स्कूल हैं। अब आप बोलेंगे हमारे पावर पॉइंट से उर्दू जुबान का क्या ताल्लुक? तो बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये जो बरेलवी और देवबंदी मकतब फिक्र का डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसमें उर्दू की बहुत बड़ी जो है क्या बोलना चाहिए रोल है, भूमिका है। वो इस तरीके से कि उर्दू के 3 स्कूल माने जाते हैं, यानी उर्दू जुबान के ओरिजिन या डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकली 3 सेंटर्स है। एक दिल्ली है, एक लखनऊ है और इन दोनों के दरमियान में है खैराबाद। तो आप देखेंगे अगर राइटर्स की आप पढ़े तहरीरात, तो दिल्ली के राइटर की उर्दू अलग है, लखनऊ के यानी अवध स्कूल की उर्दू अलग है जिसमें बरेलवी भी आता है, खैराबाद स्कूल की उर्दू अलग है। तो हम देखते हैं कि मौलाना मौदूदी का जो राइटिंग स्टाइल है वो दहलवी है। अब इसी स्टाइल पे नजीर अहमद जो कि उर्दू के मशहूर नावल निगार भी हुए हैं, मुतरजिम कुरान भी, डिप्टी नजीर अहमद का भी स्टाइल दहलवी है। और ऐसे ही जो है नजीर अहमद साहब हुसैन दहलवी की भी राइटिंग है। और इनसे हटकर अगर आप देखें तो माहिल खैराबादी है, माहिरुल कादरी है, इनके राइटिंग स्टाइल खैराबाद की है। लखनऊ के लोगों में और खैराबाद के लोगों में थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, लेकिन एक अलग स्कूल है खैराबाद। और लखनऊ के स्कूल के जो लोग होंगे उनकी जुबान में आपको कलाम, शायरी, इन चीजों के अंदर ज्यादा जो है दकीकपन नजर आएगा। मिसाल जो देते हैं ये फिर तजाद वाली चीजें एक दूसरे से एक ही जुमले में पुरोकर पेश कर रहा है, ये सब लखनऊ के लोगों में कमाल है। मुस्कुराते हुए कैसा वो तंज है और जो है गाली के अंदाज में वो कैसी मोहब्बत है, ये सब उनके पास में उल्टी पुल्टी चीजें बहुत सी मिलेंगी। ये चीजें मजहब की नुमाइंदगी में भी आ गई। तो जब मजहब की, तो ये पॉइंट मैं इसलिए रख रहा था कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का इजहार जुबान से करना होगा, तो जुबान से कैसे करेंगे? अगर जुबान में इख्तिलाफ है, दिल्ली के लोगों की जुबान अलग है, खैराबाद के लोगों की जुबान में भी फर्क है और फिर अवध वाले लोगों की जुबान में भी फर्क है, तो मोहब्बत का इजहार भी जरा अलग होगा। एक स्केल हो गई। दूसरी स्केल है एहतराम की। अलग अलग इलाकों के लोगों के पास जुबान के हिसाब से एहतराम के भी अलग अलग पैमाने रहेंगे। दिल्ली का आदमी अपनी जुबान के लिहाज से इज्जत तकरीम को पेश करेगा और खैराबाद वाला अपनी स्केल की बुनियाद पे, अवध वाला अपनी स्केल की बुनियाद पे। तो ये जो स्केल्स पैरामीटर्स होंगी मोहब्बत के या एहतराम के, ये अलग अलग होंगे। इनको लेकर जो इख्तिलाफ होगा इसकी वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते, झगड़े भी होते। और यही हुआ है इस मामले में। कैसे हुआ हम देखते हैं कि नकी अली साहब ने जहां पर सैयद अहमद बरेलवी इस्माइल शहीद की जो है मुखालिफत की, उनके फॉलोअर्स की मुखालिफत उनके शागिर्दों ने। तो हम देखते हैं कि 1864 में देवबंद में एक मदरसा कायम हुआ, दारुल उलूम देवबंद, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम उम्मत को ब्रिटिश कल्चर के इम्पैक्ट से बचाया जाए। तो उस ब्रिटिश कल्चरल इम्पैक्ट से बचाने के लिए दारुल उलूम देवबंद में
जो तालीम होती थी वो खाली मजहबी रंग की होती थी। तो उसके फाउंडर्स में थे कासिम नानोतवी, उसके फाउंडर्स में थे रशीद अहमद गंगोही और दीगर मुख्तलिफ उलमा। तो इन लोगों का जो स्टाइल था वो स्टाइल दहली की लैंग्वेज में होता था, तो फिर खैराबाद और अवध के लोगों को वो स्टाइल थोड़ा चुभता था कि ये कैसी जो है जुबान आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जुबान, इसका मियार इज्जत का, तकरीब का, एहतराम का, नबी की मोहब्बत का बहुत मुख्तलिफ है। एक तो ये बहुत सारे आइडियाज भी ऐसे थे जिसके अंदर आपको फर्क नजर आता। दरअसल देवबंद के लोगों में रिफॉर्मिंग आइडियाज पाए जाते थे, रिवाइवलिस्ट आइडियाज पाए जाते थे। मुसलमानों में बाज ऐसे अफकार जो सूफिया की नरमी की वजह से आ गए थे, बरेलवी उलमा ने उन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ अपने सर पे उठा लिया, देवबंदियों ने उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। नतीजतन इन चीजों का क्लैश नजर आता है। वो रसूम, वो रिवाज, वो कस्टम्स, वो ट्रेडिशंस जिसको सूफिया ने हिंदुस्तान में राइज किया था, बरेलवी उसे सर आंखों पे रखते थे और देवबंदी बोलते थे कि कुरान व हदीस से जो चीजें डायरेक्ट मिलती है ले लो, जो नहीं मिलती है थोड़ा उसको फिल्टर करो, उसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो वो कर लो। 100% भी वो फिल्टर नहीं था, लेकिन उस फिल्टर का भी लोग जो है फर्क महसूस करते थे, उसकी मुखालिफत होती थी। तो मुखालिफत हुई कासिम नानोतवी की, मुखालिफत हुई रशीद अहमद गंगोही की, आगे उसी सिलसिले में अशरफ अली थानवी की भी मुखालिफत हुई और फिर एक स्कूल के तौर पर देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की ही मुखालिफत शुरू हो गई। कैसे हुई? एक खत की बुनियाद पे मैं आपको बात पूरी सुना देता हूँ। एक साहब थे अननोन, ऐसा होता हम लोगों को समझाने के लिए जब मिसाल देते यूनिवर्सिटी में या ऐसा के प्रोग्राम्स में, तो मैं अक्सर बोलता हूँ वो एक टिक्का लगाने वाला रहता, कौन रहता हमारे को नहीं मालूम, वो टिक्का लगा के चले जाता, बाद में लड़ाई चलते रहती। तो ऐसे ही एक टिक्का लगाने वाला था, वो खत लिखा, खत लिख के पूछा अशरफ अली थानवी से क्या नबी को इल्म गैब था? तो अशरफ अली थानवी जो कि देवबंदी उलमा से पढ़े लिखे उनके शागिर्द थे, तो उन्होंने वो तफसील से जवाब दिया कि इल्म गैब के माने आपके पास क्या है? जो इंसान को नहीं मालूम वो उसके लिए गैब है। तो इल्म गैब उस हिसाब से जानवरों में भी होता, चरिंद में भी होता, परिंद में भी होता, ज़लज़ले से पहले मालूम हो जाता, तूफान से पहले मालूम हो जाता। ऐसे ही जो है पैदा होते बच्चे को दूध पीना मालूम रहता, मच्छी को तीरना मालूम रहता, परिंदे को उड़ना मालूम रहता। बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी लिख के कंक्लूजन में लाया कि नबी को कुछ इल्म था जो उम्मत को नहीं मालूम है, तो वो गैब है। लेकिन ये कहना कि नबी के पास सारे गैब का इल्म था, गोया उनको खुदा बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जवाब तो सही था, मगर वो अंदाज, एक तो लैंग्वेज वाला फर्क, दूसरा ये मिसालें सारी जो आ गई। अब वो टिप्का लगाने वाला ये किया कि वही सवाल और इनका जवाब वापिस अहमद रजा खान को भेज दिया। नबी के इल्म गैब के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? एक देवबंद के आलिम की ये राय। तो अहमद रजा खान फाजिल सीनियर है, अशरफ अली थानवी के भी सीनियर है, बल्कि अशरफ अली थानवी के टीचर्स और अहमद रजा खान वो क्लासमेट हुआ करते थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मदनी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं तसव्वुफ के, हिंदुस्तान छोड़ के जाके मक्के में मुकीम हो जाने का, मदीने में मुकीम हो जाने का इरादा था उनको, तो उन्होंने यहाँ से निकल के चले गए। तो इनकी जो है बैत किए हुए इनके मुरीद, इनके सज्जादे, तो अहमद रजा खान ने अशरफ अली थानवी को खत लिखा कि आप जो जवाब लिखे, जवाब तो दुरुस्त है लेकिन अंदाज बड़ा गुस्ताखाना है, लिहाजा आप रुजू करो। रुजू करो के माने है तौबा करो। तो अहमद रजा खान साहब का खत मिलते अशरफ अली थानवी पहले तो डर गए, अरे ये हमारे उस्ताद के क्लासमेट साथी है, एक ही जो है पीर के जो है साथ जुड़े सो पीर भाया हैं। तो पढ़ के जवाब पहले तो हैरत में पड़ गए कि मैं नबी की शान में गुस्ताखी सोच भी नहीं सकता। पर गौर करे, फिर जवाब भेजेंगे, भाई मैं गौर किया, मैं पढ़ा, मेरे रिप्लाई में ऐसी कोई बात गलत नहीं है, मैं किस चीज पे रुजू करूं? बोले नहीं, आपका जो अंदाज था वो नबी के शान नहीं है, आप गुस्ताखी करें नबी की शान। ऐसी तमसील, ऐसी मिसाल चरिंद की, परिंद की, मुख्तलिफ जो है अल्लाह की मखलूकात की, क्या नबी के बिलमुकाबिल इन चीजों को पेश करना था? आप सही नहीं करे, आप रुजू करो। अशरफ अली थानवी साहब सदमे में आ गए, क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई। आगे उनके टीचर्स, उनके साथी जो थे वो पूछे क्या बात है, तो बताया कि बात तो कुछ नहीं है, लेकिन अब मेरे ऊपर ये इल्जाम आ गया है कि मैं नबी का गुस्ताख। तो पूरी तफसील सुनने के बाद वो लोग जवाब पढ़ के वो बोले कि देखिए हमारे इलाके की लब्बो लहजे में, जुबान में और जवाब देने का जो लॉजिक अंदाज है उसमें तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, रुजू क्या करेंगे। अभी आर्गुमेंट बड़ा होता है कि किसी के साथ थोड़ा चुभने वाली कोई चीज हो जाए ना, तो फिर उसके सारे गलतियां दिखना शुरू हो जाती। तो फिर अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी साहब को देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के पूरे पुराने गलतियां सब याद आ गए, जो कि उनके उस्ताद के उस्ताद यानी फजले और खैराबादी के जमाने से जो अब तक जमा करके रखे थे डेटा, वो सब वो खोल खोल के पेश करना शुरू कर दिए।
اب یہ کھول کھول کے پیش کرنا جو شروع کر دیے، اس میں بہت سنگین چیز یہ ہو گئی کہ ایک کتاب کمپائل کر دیا مرزا خان صاحب، اور کتاب کے اندر دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے آئیڈیاز کی رد مخالفت کھول کے پیش کیے، اور اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین۔ حسام عربی زبان میں دو دھاری تلوار کو بولتے، ایسی تلوار جس کے دونوں طرف شارپ رہتی ہے۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے جو کرو والی تلوار ہوتی ہے اس کو عباسیت سورڈ بولتے ہیں، تو اس کے ایک سائڈ دھار ہوتی، دوسرے سائڈ دھار نہیں ہوتی، لیکن حسام خاص طور پہ عرب کی اس تلوار کو بولتے ہیں جس کو دو طرف بھی دھار ہے، یعنی وہ کرو نہیں ہے، اسٹریٹ والی، وہ بھی حسام الحرمین، یعنی حرم سے آنے والی تلوار جس سے ہم دیوبندیوں کے افکار کو کاٹ رہے ہیں، یہ اس کے معنی نکلتے۔ ایک پورا رائٹ اپ تیار کرے، اس رائٹ اپ کو عرب بھیجے، اپنے دوستوں اور شیوخ کے ذریعے سے جو تعلقات تھے اس کی بنیاد پہ 80 علماء سے اوپینین حاصل کرے کہ دیکھو ہندوستان میں ایک چھوٹا گروپ ہے، فریکشن امت کا، اس کے اندر یہ آئیڈیاز پائے جاتے، اور پبلک پہ وہ دین اسلام کا نمائندہ بنتے پھر رہا، بولو کیا کرتے۔ تو وہ جو احمد رضا صاحب کے جاننے والے تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے مشروط اس کے اوپر اوپینین دیا کہ اگر آپ جیسا پیش کر رہے ویسا ہے تو ان چیزوں کی توبہ ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے، نہیں تو کافی ہے۔ تو جیسے ہی دیوبندیوں کے پاس اس کا جو ہے پہنچا کہ بھائی 80 علماء تمہاری مخالفت میں ہم کو جواب بھیج دیے حرم سے، حرمین سے، یہ حرم کی تلوار تمہارے اوپر پڑ گئی حسام الحرمین۔ وہ فتوے میں بہت ساری باتیں ایسی ویسی بھی ہے، وہ فتوے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیوبندیوں کو صحیح مانا تو وہ کافر، دیوبندی تو کافر ہے ہی ہے، ان کے کسی آئیڈیا کو صحیح مانا تو وہ بھی کافر، اتنی ایکسٹریم اس کے اندر بات آ گئی۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ویسی واقعات دیوبندی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، مگر ساری چیزوں کے اوپر احمد رضا خان صاحب کی شدت ہے غصے کی۔ ہمارے استاد تھے مرحوم شاہد علی عباسی صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی پہ، اور پوسٹ پی ایچ ڈی ان کا ریسرچ تھا احمد رضا خان پہ، ایک ہی اسکیل پیرامیٹر پہ دونوں کی ریسرچ انہوں نے کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو نبی سے بے انتہا محبت تھی، مگر وہ محبت حاسدانہ تھی۔ میں ان کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کر رہا ہوں، کوٹ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح مانتا ہوں، سمجھانے کے خاطر وہ اچھا دکھا تو میں اس کو کوٹ کر دیا کہ احمد رضا خان صاحب ایسے سمجھتے تھے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جیسا نبی کو چاہتا ہے ویسا ہی چاہنا صحیح ہے، دوسرے انداز کی محبت کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو حاسدانہ محبت انہوں نے ایک نام دیا تھا اس کو۔ بہرحال کچھ حد تک تو بات صحیح بھی لگتی کہ بریلوی اسکول کے لوگ اتنی برداشت نہیں بتائے کہ نبی کی محبت کا اظہار آپ ایک انداز میں کر رہے ہیں، دہلی کے لینگویج اسکول کے لوگ دوسرے انداز میں کر سکتے ہیں، یا لاجک آپ کا ایک ہو سکتا ہے، دوسرے کا لاجک کچھ اور ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اوپینین میں دونوں کامن تھے علم غیب کو لے کے، نبی کو علم ہے امت کے بنسبت بہت زیادہ غیب کا علم ہے، مگر وہ کل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، خدا جتنا دیا اتنا ہی ہے۔ اگر کسی کے پاس سارے کے سارے علم غیب آ جائے تو پھر اس کے اندر ڈیوینٹی آ جاتی، تقدس آ جاتا، خدائی۔ تو یہ عقیدہ بریلیوں کا بھی نہیں ہے، وہ بھی بولتے ہیں کہ نبی کو علم غیب جو ہے وہ محدود ہے، لامحدود علم نہیں ہے۔ تو یہ ہسٹری ہے جس کا آغاز ہوا تھا اس خط سے، جس کے بعد اوپن کنفرنٹیشن شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بند کمروں میں ہوتے تھے یا کلوز گیدرنگز میں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد میں باضابطہ لکھا پڑھائی چالو ہو گئی، فتوے بازی شروع ہو گئی۔ تو حسام الحرمین کے جواب میں دیوبند کے اسکالرس نے بھی اپنا ڈیفینس کمپائل کیا، تو ان کا رائٹ اپ پورا پریپئر ہو گیا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا المفند علی المفند۔ تو عرب کے لوگوں میں ہندوستان کی تلوار بھی بہت مشہور تھی۔ ہند سے اس زمانے میں جو انڈیا سے چیزیں عرب کو ایکسپورٹ ہو کے جاتی تھی اس میں گرم مسالے تھے، دار چینی ہے اور عود ہے اور مختلف مسالے ہیں، ان کے علاوہ ہندوستان کی تلواریں بھی جاتی تھی جس پہ مراد آبادی کام ہوتا تھا، چاندی کا بہت خوبصورت۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے خنجروں پہ یا عطر دانوں پہ یا جو ہے پاندانوں پہ وہ خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں چاندی کے، تو تلوار کی ہینڈل پہ، اس کے مٹ پہ، اس کے میان پہ وہ ڈیزائننگ ہوتی تھی، تو بہت مشہور ہوتی تھی وہ خوبصورت تلواریں ہند کی، تو اس کو کہتے تھے المہند۔ اور مفند کہتے ہیں ایک ایسے بوڑھے کو جو بڑبڑانا شروع کر دیا، ایج کا ایک ایسا پوائنٹ آ گیا کہ منہ میں بڑبڑا رہا ہے، کیا بول رہا ہے اس کو خود اس کا ہوش نہیں ہے، تو سٹھیایا ہوا ہے موٹے موٹے حساب سے۔ تو دیوبندیوں کی طرف سے احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتوے کا جواب جب آیا تو اس کا ٹائٹل رکھا گیا المہند علی المفند۔
हमारे ऊपर जो लोग जो है एतराज करके 80 उलमा का ओपिनियन हासिल करे, वो दरअसल छठियाए हुए हैं, पटरी पे नहीं है। तो दोनों का भी लब्बो लहजा, दोनों की भी जो है अंदाज बयान बेहद दुश्मनी वाले हैं, सख्ती वाले हैं, मगर ऐसा है हकीकत। तो फिर ये सिलसिला चला, रफ्ता रफ्ता 50 साल के अंदर ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बरेलवी मकतब फिक्र के लोगों ने रियलाइज किया कि देवबंद एक मदरसा बना के जब इतने बड़े बड़े काम कर रहा है तो फिर हम भी कुछ करते। तो 64 में देवबंद का मदरसा बना था। अब बरेलवियों को रियलाइज हुआ तो उन्होंने अपना एक मदरसा मज़ाहिरुल इस्लाम के नाम से कायम किया, जो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का कायम किया हुआ है। लेकिन दरमियान में बहुत लंबा पीरियड 30 साल का निकल गया। कुछ बड़े कंट्रीब्यूटर्स है बरेलवी मकतब फिक्र के, उन कंट्रीब्यूटर्स को अगर आप देखें तो कुछ समझ में आएगा। जैसे अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है, 100 किताबों के जो है वो कंपाइलर है या राइटर है। उसमें तर्जुमा कुरान भी है, उनका नातिया मजमुआ भी है और उनके फतावा का एक कलेक्शन है। तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का वो फतावा का जो कलेक्शन है बहुत बड़ा है। मैं देखा उसको, अरबी में जो है कलेक्शन 31 वॉल्यूम्स का है। 31 वॉल्यूम्स बल्कि है, एक एक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट तफहीम के साइज की है और अरबी में है। और दिलचस्पी ये है उसके अंदर के बहुत सारे फतावे अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के ऐसे हैं जिसको अगर आप बताए तो अहले हदीस भी साइन कर देगा, बिल्कुल सही है बोले। हालांकि उनके दरमियान में 360 का आंकड़ा रहता। जैसे मजार का पक्का पुख्ता तामीर करना, अहमद रजा साहब फतवा दिए गलत है, नहीं होना। मजार के पास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के कव्वाली की मजलिस सजा रहा, उनका फतवा है हराम, ममनू, नहीं होना। मगर आज उन्हीं की मजार बने हुई है और वहां पे वो सब होता है। तो पहले कंट्रीब्यूटर के तौर पर मैं उन्हीं का नाम पेश किया, हालांकि उससे पहले भी दूसरे असातिज़ा थे उनके। दूसरा नाम आप देख सकते हैं जमात अली शाह साहब का है। ये शहीदगंज मस्जिद को लेकर जो मूवमेंट ये चलाए थे उसका जो है उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी मिला और लोग जो है उनके फैन फॉलोअर के तौर पर सामने आ गए। और पाकिस्तान के अंदर एक जमीयतुल उलमा पाई जाती है, उसके अंदर भी इनका जो है बड़ा रोल है। फिर हम देखते हैं तीसरा नाम है हामिद रजा साहब का। ये अहमद रजा खान साहब के शागिर्दों में से है। इन्होंने लोगों के सामने पाकिस्तान के अंदर एक जमात कायम की जिसका नाम है जमात रजाए मुस्तफ़ाई। यहाँ पे रजाए मुस्तफ़ाई के माने अहमद रजा नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करो ताकि वो क़यामत में तुम्हारे लिए शिफाअत करे, ये वाली बात है। फिर आगे आप देखिए एक बहुत मशहूर आलिम दीन है मुफ्ती नईम यार खान साहब। तो मुफ्ती नईम यार खान को मुफ्ती नईमुद्दीन भी बोलते हैं। इनको एक टाइटल दिए हैं बरेलवी उलमा, बोलते सदरुल अफाजिल, क्योंकि नईम यार खान साहब 5 सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, तफसीर के, हदीस के, फिक्ह के, अरबी लुगत के और मंतिक के, लॉजिक के। 5 सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो मुफ्ती नईम यार खान, इनकी तफसीर भी है, तफसीर नईमी, बहुत बड़ी तफसीर है, बहुत अच्छी तफसीर है। इससे हटकर एक छोटी तफसीर भी लिखी है वो कंजुल इरफान, यानी तफहीम भी लिखे, तलखीस भी लिखे बरेलवियों के लिए, ये बोल सकते हैं मोटे अल्फाज। इनका बड़ा कारनामा ये है कि ये 1925 से लगातार ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मनाते आए। अब तो देखा लोग या बाकी नहीं है, लेकिन ये उसके फाउंडर है। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ही वो कॉन्फ्रेंस है जो कांग्रेस के खिलाफ में काम करना शुरू करी थी और लगातार अभी भी कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रही, लेकिन मुसलमानों के अंदर करती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या है? पब्लिक मास गैदरिंग्स के अंदर बरेलवी आइडियोलॉजी के हिसाब से कुरान और हदीस को पेश करना। फिर आप देख सकते हैं कुछ और नाम वहाँ पे आप देखिए बुलेट पॉइंट से हटकर, जैसे मुफ्ती मुस्तफ़ा रजा कादरी है, ये अहमद रजा खान साहब के बेटे हैं। इनको मुफ्ती आजम हिंद का टाइटल दिया गया। क्यों दिया गया ये भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मौलाना शफी साहब को मुफ्ती आजम पाकिस्तान का टाइटल मिला। तो यहाँ बरेलियों ने कहा अच्छा देवबंदी पाकिस्तान का मुफ्ती आजम बन गया तो हिंदुस्तान का मुफ्ती आजम हमारा होना जरूरी है। तो मुस्तफ़ा रजा कादरी साहब को ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, मुफ्ती आजम हिंद का टाइटल दिलवाए वो। ऐसे ही एक और साहब है मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी साहब। तो मोहम्मद अब्दुल गफूर हजारवी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के सदर अभी है बहयात, बहुत बूढ़े हो गए हैं। इनका बड़ा काम है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत को लेके। कादियानियों के खिलाफ में जो मूवमेंट शुरू हुए थे पाकिस्तान में, इसमें उनके फॉलोवर्स का बहुत बड़ा रोल है। फिर एक बड़ा नाम है करम शाह अजहरी का। करम शाह अजहरी मशहूर मुफस्सिर कुरान, अल अज़हर जाकर पढ़कर वहां से आए वापिस। तो पाकिस्तान में अयूब खान के जमाने में ये हुआ
کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے واسطے مارشل تھے نا, وہ مارشل نے یہ کیا کہ عدالت میں ایک خصوصی ٹریبیونل بنایا, ریلیجیس ٹریبیونل, جس میں ہر مکتب فکر کے ایک آدمی کو جو ہے جسٹس کا پوسٹ دیے. تو بریلویوں میں کرم شاہ ازہری کو پوسٹ ملا, دیوبندیوں میں وہ پوسٹ ملا تقی عثمانی کو, اور جماعت اسلامی میں پوسٹ کو قبول کرے چودھری صاحب, مولانا مودودی کے اسٹوڈنٹ, جو مولانا مودودی کے بعد رسائل و مسائل میں جواب دیتے تھے. 5 حصے مولانا مودودی کے ہیں رسائل مسائل میں, اور 2 حصے جو ہے چودھری صاحب کے ہیں. تو ٹائم اپ ہو گیا ہے, اور 2-4 سلائیڈ اس کے بچے ہوئے ہیں. کل پہلے اس کو پیش کریں گے, اس کے بعد پھر دیوبندی اسکول کو ہم پیش کرتے ہیں. بریلوی اسکول سے ریلیٹڈ کوشچنز بھی کل ہی کنٹینیو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان بنائے اور قبول کرے اس کوشش کو. آمین. چلیے انعام اللہ خان صاحب. یہ شاید انعام اللہ